Hello students. So till now we completed all the methods of solving linear pair of equations. Okay, in the last lecture we discussed about the questions based on condition of solvability. Also we discussed in the last lecture some equations that were not linear, but we solved them by making them into linear form. Now, as I told in the last lecture, first of all we will have some more question on condition of solvability. Then we will come on the next topic, that is word problems. Okay, word problems is gonna be very important. Now let us take some more question on condition of solvability. You remember condition of solvability? What was the condition for no solution? Condition for no solution was a1 upon a2 does not equals to b1 upon b2. Clear? So students, let us take one question on first question on condition of infinite solution. Okay, in today's class. So my question is, for what values or value of k will the given equations following equations have infinite many solutions. Also question can be asked in this way, that for what value of k the following lines will be coincident or overlapping. Okay, now the given equations are kx plus 3y is equals to k minus 3 is equal to k minus 3, and similarly the second one is 12x plus ky is equal to k. Okay students, so let us solve it. We know for infinite solutions, what was the condition? The three ratios are equal. a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. Let them be equal. K upon 12 is equal to 3 upon k and is equal to k minus 3 upon k. ये मैं बता चुका हूँ आपको लास्ट लेक्चर में. a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2 तीनों को अपन ने इक्वल कर दिया. Now first of all taking these two equal, just make them into two parts. These two are equal and also these two are equal. 3 upon k is equal to k minus 3 upon k. So here I will get k square is equals to 36, or the value of k comes out to be plus minus 6. Okay, so by solving these two I get the two values of k, plus 6 and minus 6. Now let us see what I get by solving these two. By solving these two I can write k square minus 3k. I am just cross multiplying k is equals to 3k. So k square, this 3k when come here it will become minus 6k is equals to 0, or taking k common, k or k minus 6 is equals to 0. So this is simple factorization of this quadratic. Okay, so I can say either the value of k is 0 or the value of k minus 6 is equals to 0. That means k is equals to 6. Now this suggests that k should have two values, 0 and k is equal to 6, but k cannot equal to 0. Why? Because if k becomes 0, the general form will not satisfy. Okay, the kx coefficient of x is k. So these two suggest that k should be 6. These two suggest that k should be 6, and this suggests k should be plus minus 6. So what should be our answer? Our answer should be k is equal to 6. You can check at k is equal to 6. These three ratios will equal, but it won't be equal at k is equals to minus 6. Whenever quadratic appears you have to check. Okay, जब भी दो आंसर आ रहे हो आपको चेक कर लेना चाहिए कि दोनों आंसर अप्लाई हो रहे हैं या कोई एक आंसर अप्लाई हो रहा है. ठीक है, so you will be checking. I am writing here k is equals to 6 is the required answer. Okay, now let us take one question on condition of no solution.
So my question is, for what values of p for what value of p will the given system have no solution? Will the given system of equations have no solution? Or it can be asked in the way that the following lines are parallel. They give the same meaning. 2p minus 1 times x plus p minus 1 times y is equal to 2p plus 1. Also the second one is 3x plus y is equals to 1. Now just apply the condition for no solution. We know for no solution, what was the condition? Condition was your a1 upon a2 is equal b1 upon b2, but this ratio doesn't equal to c1 upon c2. Now I will apply the condition in the given question. So 2p minus 1 upon 3 is equal to p minus 1 upon 1, okay, is equals to 2p plus 1 upon 1, okay. I just write a1 upon a2 is equals to b1 upon b2, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2, but does not equals to c1 upon c2. Now these two and these two again, 2p minus 1 upon 3 is equals to p minus 1 upon 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ओके, चलो इस बार तो लिख देते हैं. एंड here p minus 1 must not equal to 2p plus 1, okay. So we can write 2p minus 1 is equal to, cross multiplying I will get 3p minus 3, or it will become minus p is equals to minus 2, or pp will get, minus will get cancelled out. The value of p is 2. See, by solving these two I get p is equals to 2. Now I have to check that whether at p is equals to 2 these two are not equal or not, okay. So and I will say at p is equals to 2, p minus 1 is 2 minus 1, that is 1, and 2p plus 1 is 2 into 2 plus 1, that is 5. So clearly 1 not equal to 5 na? 1 not equal to 5 na? So yes, I can say at p is equals to 2 these two are not equal, these two are equal. It means p is equals to 2 is required value, okay. P is equals to is solution, our answer, okay. Now take one more question. This time I am taking a question based on condition of unique solution, okay. Now next question is, find p for which the given pair of linear equations have a unique solution. Also it can be asked, the given lines are intersecting. So what are the given equations? 3p plus 1 times x minus py plus 7 is equals to 0, and the next one is 2px plus y minus 3 is equals to 0, okay. Now solution, we know for unique solution what is the condition? a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, मतलब ये दोनों रेशियो अनइक्वल होने चाहिए, क्लियर. So just applying this, 3p plus 1
upon 2p must not equal with the ratio minus p upon 1. No problem at all. It is a1. Value of b1 is coefficient of y, that is minus p. Okay. Value of a2 is 2p and value of b2 is plus 1, coefficient of y in the second equation. Now after cross multiplying, see it is a in equation. Okay, in equation हम 11th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे इन इक्वेशंस को, बट नॉर्मली होता है यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है, मैं अभी बता देता हूँ आपको. सी 3p plus 1 should not equal to minus 2p square. इट बिकम्स क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक हमारा नेक्स्ट चैप्टर एक्चुअली है ना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट भी आ गया है, बट अभी आप समझ लें इस क्वेश्चन को. इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूँ तो ये बनता है 2p स्क्वायर प्लस का प्लस 3p प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0. ओके, मैं जस्ट इसको यहाँ पर ट्रांसपोज कर दिया. नाउ स्टूडेंट्स, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. वैसे तो एक्चुअली हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी का, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होने वाला है. वहाँ पर हम इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पर अनइक्वलिटी का साइन है, देखो, तो इसको कहूँगा मैं क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन एक्चुअली. सो स्टूडेंट्स, आपको कुछ नहीं फैक्टराइज करना होता है. अभी के लिए आप इतना समझें कि इसको क्या करना होता है, फैक्टराइज करना होता है. तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ तो मुझे 3 के ऐसे फैक्टर खोजने पड़ेंगे जिससे कि मुझे 2p स्क्वायर प्रोडक्ट में मिलता हो. ओके, सो 2p प्लस p विल बी द फैक्टर्स. 2p plus p will become 3p and 2p into p will become 2p square. Okay, we will have more practice on this quadratic in the next chapter. Also ये factorization आपने 9th क्लास में पढ़ा है quadratic polynomial में. Okay, by middle term splitting. So I am using here middle term splitting. So here I got the result. Okay, let us solve it on new page. I have got the result. 2p plus 1 is the factor and another factor is p plus 1, and this product must not equal to 0. That means this must not equal to 0, this must not equal to 0. Okay, so I can write 2p plus 1 must not equal to 0 and also p plus 1 must not equal to 0. So the value of 2p must not equals to 1 and the value of p must not equals to minus half. Similarly, p must not equals to minus 1. So this is very good question. Okay, very standard question. I will give the answer in this way, that the value of p can be any real number except minus half and minus 1. क्योंकि हमने क्या बोला, हमने ये कहा p माइनस हाफ नहीं होना चाहिए और p माइनस 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर p माइनस हाफ होता है तो उस केस में आप चेक करना ये दोनों रेशोज जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे. ओके, सिमिलरली अगर p माइनस 1 भी होता है तो भी ये रेशो इक्वल हो जाएंगे. मैं आपको चेक करके बताता हूँ. अगर मैं p की वैल्यू यहाँ पर माइनस 1 रखता हूँ तो क्या होता है, देखो, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 माइनस 2 और 2 इंटू माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2. ओके, तो माइनस 2 प्लस 1 रेशो आता है. सिमिलरली p की यही वैल्यू माइनस 1 में यहाँ रखता हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 1 तो 1 के इक्वल होता है. दैट मीन्स p माइनस 1 नहीं होना चाहिए. तो माई आंसर विल बी इन दिस फॉर्म. Value of p can be any real number except minus half and minus 1. आप p की कोई भी वैल्यू लो, माइनस हाफ और माइनस 1 को छोड़ दो, सीधा सीधा हिसाब है. ठीक है. ओके, सो एक क्वेश्चन आपके लिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप करना, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन मैं लास्ट क्लास में करा भी चुका हूँ. फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b द गिवन सिस्टम हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. द गिवन सिस्टम will have infinite solution. Now the given equations are a plus b times x minus 2by is equal to 5a plus 2b plus 1. Okay, this is your equation number 1, and the next equation is 3x minus y is equals to 14. 3x minus y is equals to 14. ओके, कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस चेक लगानी है आपको, और यहाँ पर आपको दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है. एक वेरिएबल्स है a एंड
B. Clear, students? Now, so far we have completed the questions based on condition of solving. Okay, condition of solving in linear pair of equations. Now let me give you one or two question on this condition. Okay, then we will come on our next topic, that is word problem. Okay, this question is for unique solution. I am writing the question. For what k the following equations have unique solution. Okay, first question is kx plus 3y इज इक्वल्स टू k माइनस 3. इस क्वेश्चन के अंदर अपन ने पार्ट बना दिया. एक क्वेश्चन का पार्ट है 1, के एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू k माइनस 3, एंड द नेक्स्ट इक्वेशन इज 12x प्लस ky इज इक्वल टू k. गिविंग यू वन मोर, x प्लस 2y इज प्लस 5, एंड द नेक्स्ट इज 3x प्लस 3x प्लस ky. 3x plus ky minus 15 is equal to 0. Okay, so these two questions are based on the condition for unique solution. Okay, students, question ऐसा भी आ सकता है, for what value of k following system of equations will be consistent. Now consistent की दो condition होती है. Okay, so you have to use your mind here. Okay, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन इस टाइप का. क्वेश्चन है फॉर what value of k the following system of equations will be inconsistent. Okay, question is on inconsistency. Will be inconsistent. Now inconsistent तो एक ही केस होता है. कौन सा केस होता है inconsistent? कंसिस्टेंट होता है हमारा नो सॉल्यूशन वाला केस. ओके, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप याद रखें. ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जो कि इनकंसिस्टेंसी पूछ लिया आपसे, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन वाला केस है ये. 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 11 एंड 2x प्लस ky इज इक्वल टू प्लस 7. सो वी नो फॉर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट का मतलब ही है हमारा क्या, to have no solution. Okay, 4/2 should equal to 6/k, but this ratio must not equal to 11/7. Okay, so our answer will be 4k should equal to 12 and 11k must not equal to 42. Clear? So yes, the value of k is 3. Also at k is equals to 3, 11 into 3 33, that is not equal to 42. So k is equals to 3 is required answer. Clear, students? Now, so we have completed this portion of the chapter. Now students, let us make a new heading, the last one, word problems. आज के बाद हमारे को इस चैप्टर के अंदर केवल और केवल डील करना है वर्ड प्रॉब्लम से, जहाँ की मैं इक्वेशंस को फॉर्म करूँगा और सॉल्व आप करेंगे.
ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस मैं भी सॉल्व करूंगा बट मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि अब हम सीख चुके हैं ना कि हाउ टू सॉल्व गिवन इक्वेशंस. ओके, नाउ वी विल बी टेकिंग द केसेस ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके स्टूडेंट्स, वर्ड प्रॉब्लम्स ही एग्जाम में ज़्यादातर आती हैं. ओके, यहाँ आपको एप्टीट्यूड चाहिए होता है इक्वेशंस को, मतलब जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के फील को समझकर उसको इक्वेशंस में फॉर्म करना, मतलब उसको उससे आपको इक्वेशंस फॉर्म करनी होगी. अब स्टूडेंट ध्यान रखें, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई. हमारे को हर एक इक्वेशंस में दो ही वेरिएबल यूज़ करने हैं, एक्स और वाई. कोशिश करेंगे हम दो ही वेरिएबल्स के अंदर, क्योंकि हमारा चैप्टर भी दो ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ही इक्वेशंस को फॉर्म करें और देन उसको सॉल्व करें. तो आज अपन स्टार्ट करते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम से. वर्ड प्रॉब्लम्स बेसिकली स्टूडेंट्स फ्रैक्शन पे बेस्ड हो सकती है, नंबर सिस्टम पे बेस्ड हो सकती है, जो कि मतलब नंबर्स के बीच में कोई रिलेशन देके एक अननोन नंबर को पूछना, फ्रैक्शन से रिलेटेड आपके 2 डिजिट नंबर से बेस्ड हो सकती है. एज रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एज पे बेस्ड. वैसे तो वर्ड प्रॉब्लम्स का कोई लिमिट नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस से भी हो सकती है. स्पीड टाइम डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, ट्रेन से, बोट एंड स्ट्रीम से. ठीक है स्टूडेंट्स, सो हमारे को इसके अंदर केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है और वो है एप्टीट्यूड. अगर हम क्वेश्चन को पढ़ के वो क्या कहना चाह रहा है ये समझ लें और उसको एक बार उससे इक्वेशन बनाना सीख लें, तो फिर उसके बाद नो वन कैन स्टॉप अस. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस टेक क्वेश्चंस ऑन फ्रैक्शन. हम स्टार्ट करें फ्रैक्शन पे क्वेश्चन से. कुछ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर रिलेशन देगा क्वेश्चन को वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में, और हम उससे इक्वेशन डिड्यूस करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है स्टूडेंट, इक्वेशन फॉर्म करेंगे देन उसको सॉल्व करेंगे. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही है हमारा, इफ वी एड 1 to the numerator, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from denominator, मतलब क्वेश्चन कह रहा है हम किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या होता है? अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. एक फ्रैक्शन जो है वो 1 में कन्वर्ट हो जाता है, रिड्यूसेस टू 1. ओके गुड. नाउ इट बिकम्स हाफ. आगे दे रहा है ये, इट बिकम्स हाफ. if we only add 1 to the denominator, what is the fraction? ये स्टूडेंट बिल्कुल पहेली की तरह है, बूझो तो जाने. एक फ्रैक्शन है, ठीक है, उसके अगर न्यूमरेटर में हम 1 ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो 1 बन जाता है. ठीक है. अच्छा, अगर उस फ्रैक्शन में अगर हम केवल न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू हाफ हो जाती है. बताओ फ्रैक्शन क्या है? तो इस टाइप के क्वेश्चन है. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं अपन इसको. ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए जो फ्रैक्शन पे बेस्ड हो, सबसे पहले आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एज्यूम कर लो. क्या एज्यूम करोगे? एक्स वाई. ठीक है, सारा खेल ही एक्स वाई पे ही है हमारा. तो सॉल्यूशन. नाउ सपोज न्यूमरेटर is equal to x and denominator is equal to y. Hence the original fraction is x by y. क्लियर? मैंने न्यूमरेटर को x मान लिया, डिनोमिनेटर को y मान लिया, जो फ्रैक्शन है वो ऑब्वियस सी बात है x by y बन जाएगा. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ आपका बेसिक काम स्टार्ट होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. सी, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, इट वाज आवर ओरिजिनल फ्रैक्शन x बाय वाई. अब ये बोल रहा है अगर इसमें आप 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर में, तो अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड करूंगा तो न्यू न्यूमरेटर क्या बनेगा? x प्लस 1 बन जाएगा. x में 1 ऐड करोगे x प्लस 1 बन जाएगा. वेरी क्लियर. ठीक है स्टूडेंट्स, इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर,
अगर हम डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, देखो डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे y माइनस 1, 1 माइनस y मत लिख देना, वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ओके। देन दिस इज द न्यू फ्रैक्शन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इट इज रिड्यूसेस टू 1, ये 1 बन जाता है, हो गया काम, क्लियर। ऑल्सो ये तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ऑल्सो दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, इसको भी हम सॉल्व करते हैं आगे। इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब ओरिजिनल फ्रैक्शन में अगर हम केवल न्यूमरेटर में ही 1 ऐड कर, सॉरी इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, सॉरी, सो अगर हम केवल डिनोमिनेटर में ही 1 ऐड करते, इसका मतलब हम न्यूमरेटर को नहीं छेड़ेंगे। क्या बोला है उसने, इट बिकम्स हाफ, वो हाफ बन जाता है इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर पार्ट, सो वी विल not touch the numerator in this case, numerator will be x only, okay, so it is our second. Okay, now solving this I will get x plus 1 is equals to y minus 1, or in the general form it is x minus y plus 2 is equals to 0, equation number 1. Also 2x is equals to y plus 1, or 2x minus y minus 1 is equals to 0. We have two equations. We better know how to solve this kind of equation. ठीक है, हम इन दोनों इक्वेशन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. Solve this. What is the best method? Elimination. Okay, because here it is minus y, it is minus y. If I subtract these two equations, the y will get cancelled out. So equation number 1 minus equation number 2, what I will get, x minus y plus 2 is equals to 0, and 2x minus y minus 1 is equals to 0. Let us subtract these two, minus plus plus, x minus 2x is minus x, y will get cancelled out, 2 plus 1 is plus 3 is equals to 0, or the minus x is equal to minus 3 and x is equals to 3. Putting in 1, we get y. The value of y is 3 minus y plus 2 is equals to 0. 3 minus y plus 2 is equals to 0, and यही निकाल देते हैं, ठीक है. 3 plus 2 5, so minus y is equals to minus 5 and y is equals to 5. So what are the fraction, what are the answer? So the required fraction is, the required fraction is 3/5. I hope समझ में आया होगा सबको, बहुत आसान है. देखो इसकी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है. पहले क्या बोल रहा था क्वेश्चन, वो कह रहा था आपको कि न्यूमरेटर में आप 1 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में से आप 1 माइनस कर दो, तो ये 1 बन जाना चाहिए. करो एक बार, 3 में 1 ऐड करो, बन गया 4, 5 में 1 सब्ट्रैक्ट करो, बन गया 4, 4/4 क्या बन गया 1. सिमिलरली अगर अपन बात करें दूसरी कंडीशन की, तो बोलता है कि अगर आप डिनोमिनेटर में से ही केवल 1 माइनस करते हो, ठीक है, तो इस केस में ये, सॉरी डिनोमिनेटर में ही केवल 1 प्लस करते हो, तो डिनोमिनेटर में अगर मैं 1 प्लस करता हूँ तो 5 + 1 6, 3/6 इज प्लस हाफ. ओके, सो यस द टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइंग, हेंस वी गॉट द आंसर. ओके स्टूडेंट्स, वन मोर क्वेश्चन. Okay, the sum of numerator and denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator, is 4 more than twice the numerator. ओके, ज़्यादा ही शॉर्ट हो जाएगा न्यूमरेटर. ओके, एक मिनट. द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice the numerator. If the numerator and denominator are increased by 3, if the numerator and denominator are increased by 3, then what happens?
they are in the ratio 2:3. They are in the ratio 2:3. Find the fraction. Determine the fraction. सारा खेल ही इक्वेशन बनाने का है स्टूडेंट्स. अब होने ये वाला है कि मैं इक्वेशन फॉर्म करने वाला हूँ, सॉल्व आप करने वाले हैं. ठीक है, मैं आपको इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, आप उसको सॉल्व करते रहना, सो दैट वी कैन सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस. ओके, हमारा जो लेक्चर है वो हम 40 से 45 मिनट्स का ही रखने की कोशिश करेंगे. ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं तो उसका एक ही तरीका है कि इक्वेशंस फॉर्म में करूँ और आप उसको घर पे सॉल्व करें. ओके स्टूडेंट्स, ऑल्सो जो आपको प्रैक्टिस शीट दी गई है ग्रुप पे, आई होप आप लोग सॉल्व कर रहे हैं. कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे चेक भी कराई है. जल्दी से जल्दी आप चेक सॉल्व करते रहें उसको. नाउ देखते हैं इस क्वेश्चन को. अगेन सॉल्यूशन इज, सपोज our numerator is x and the denominator is y. Okay students, so the original fraction will become x upon y. Now read it very carefully. The sum of numerator and denominator, that means x plus y की बात हो रही है. सम का मतलब ही होता है दोनों चीज़ों को ऐड करना. तो sum of numerator and denominator x plus y is 4 more than twice the numerator. According to question क्या कह रहा है? The sum of numerator and denominator, that means x plus y is 4 more than. ये जो sum है ये 4 ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है मतलब 4 प्लस में है किसके? twice the numerator. twice the numerator बोले तो 2x. बोलो समझ में आई क्या इक्वेशन नंबर 1? So here I can write आफ्टर सॉल्विंग, अगर मैं सबको उधर ले जाकर लिख दूँ तो ये बन जाएगा 2x माइनस एक्स प्लस एक्स. इस x को मैंने उधर ट्रांसपोज कर दिया, इस y को भी उधर ट्रांसपोज कर दिया, मान लो तो ये बन गया माइनस का y एंड प्लस का 4 इज इक्वल टू 0. ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी. एंड सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन है इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3. अगर दोनों को ही हम 3 8 से बढ़ा दें तो क्या होने वाला है? x प्लस 3 एंड y प्लस 3, देन दे बिकम्स इन द रेशो 2:3. तो इनका जो रेशो है, रेशो का मतलब ही होता है स्टूडेंट्स डिवाइड करना. ओके, तो x प्लस 3 y प्लस 3 ये जो रेशो होगा फ्रैक्शन इनका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, ये 2:3 हो जाएगा. क्लियर? सो बस अब क्या है, इसको सॉल्व कर लेंगे, एक और इक्वेशन मिल जाएगी. सो 3x प्लस 9 इज 2y प्लस 6 और 3x माइनस 2y 9 माइनस 6 इज प्लस 3 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 2. इसके आगे सॉल्व ऑन योर ओन. लेट अस कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. दो इक्वेशंस आपके पास है, उसको सॉल्व करें, एक्स और वाई की वैल्यू निकालें, ओरिजिनल फ्रैक्शन में पुट करें, एक्स अपॉन वाई विल गिव यू द करेक्ट आंसर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस टेक द फाइनल वन. If 2 is added to the numerator, if 2 is added to the numerator of a fraction, it reduces to half. It reduces to half. Okay. And if 1 is subtracted from the denominator, and if 1 is subtracted from the denominator, it reduces to 1/3. It reduces to 1/3. Find the fraction. हाँ, तो ये कहानी ये कहती है कि एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में अगर हम 2 को ऐड कर दें तो वो हाफ बन जाता है, मतलब डिनोमिनेटर से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है. ऑल्सो अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें उसके डिनोमिनेटर में से तो ये 1/3, मतलब सेकंड केस में हमको न्यूमरेटर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है. ओके, सो सपोज ओरिजिनल फ्रैक्शन बी
एक्स अपॉन वाई। जब मैंने ऐसे लिखा ओरिजिनल फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई है तो मतलब एक्स न्यूमरेटर है, वाई डिनोमिनेटर है। पढ़े लिखो को लोगों को बड़े आसानी से समझ में आ जाता है एक्स अपॉन वाई। ओके, नाउ सपोज ओरिजिनल फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। नाउ इफ 2 is added to the numerator, so x plus 2 and denominator is not any chedchad. Okay, so if 2 is added to the numerator of a fraction and y is not touched, that means it reduces to half according to question. This is our equation number 1. Okay, and let us write here only the second one. If 1 is subtracted from the denominator, that means न्यूमरेटर को छेड़ना नहीं है. 1 is subtracted from the denominator, it reduces to 1/3. Okay, so it will become 2x plus 4 is equals to y, or 2x minus y plus 4 is equals to 0. And here I get it is equation number 1, and here I get the equation number 2, that is 3x is equals to y minus 1, or 3x minus y plus 1 is equals to 0. Now student, solving 1 and 2, get the answer. It's your work, I'm not gonna solve. Clear? So ये क्वेश्चन थे हमारे किस पे बेस्ड, फ्रैक्शन पे बेस्ड. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एज. ज़्यादा नहीं, एक ही क्वेश्चन लेंगे आज. ओके, 1 क्वेश्चन ओनली. ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा. नाउ लेट अस टेक क्वेश्चंस ऑन एज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, चलो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. 2 years ago, ये एक ही क्वेश्चन लेंगे आज अपन. 2 years ago, a father was 5 times as old as his son. 5 times as old as his son. Okay. नाउ इसके आगे बोल रहा है क्वेश्चन 2 years later. 2 years later his age will be 8 years more than 3 times the age of his son. 8 years more than 3 times the age of his son. The age of his son. Find their present ages. Find their present ages. ओके स्टूडेंट्स, इसको समझते हैं क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है. एज से रिलेटेड क्वेश्चन है. क्वेश्चन कहता है 2 years ago. 2 years ago कब से? आज से. ठीक है, आज से 2 साल पहले अ फादर वॉज 5 times एज ओल्ड एज हिज सन. एक फादर जो था वो अपनी बेटे की एज का 5 times था. ओके, तो कब की बात हो रही है? ये 2 साल पहले की बात हो रही है. मतलब आज से 2 साल पहले जो फादर की एज थी वो जो बेटे की एज 2 साल पहले थी उसकी 5 times थी. ओके, नाउ 2 years later. 2 years later कहाँ से? आज से ही होगा. ठीक है, हमेशा मान के चलें ये 2 years later जो है वो फ्रॉम नाउ लिखेगा ये. ठीक है, नहीं भी लिखा हो तो अंडरस्टूड है 2 years फ्रॉम नाउ. तो आज से अगर 2 साल बाद की बात देखें तो क्वेश्चन बोलता है 2 years later हिज एज विल बी 8 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन. मतलब फादर की एज जो है वो 8 साल ज़्यादा हो जाएगी 3 times के. किसके 3 times के? सन की एज के. ओके, और वो भी कब? 2 साल बाद. तो क्वेश्चन को बस एक बार समझना है, फिर करना है सॉल्व. ओके, तो स्टूडेंट्स एज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है एक बार. ओके, हमारे पास वही 2 वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई. किसी एक को आप फादर की एज मान लो और एक को सन की एज मान लो, और हमेशा प्रेजेंट एजेस ही एज्यूम करो. ओके, हम हमेशा प्रेजेंट से रिलेट करेंगे. ओके, प्रेजेंट से बताएंगे कि 2 साल पहले क्या रहा होगा, 2 साल बाद क्या रहा होगा, 5 साल बाद क्या रहा होगा. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, लेट अस assume present age of father be x years and his
सन बी वाई ईयर्स। मैंने मान लिया कि जो प्रेजेंट एज है फादर की वो एक्स ईयर्स है और उसके बेटे की प्रेजेंट एज जो है वो वाई ईयर्स है। मतलब आज की तारीख में फादर एक्स साल का है और बेटा वाई साल का है। चलो अपन आ जाते हैं 2 साल पहले पे। 2 साल पहले फादर की एज क्या रही होगी? ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर 2 साल पहले की बात करें तो फादर की एज रही होगी आज से 2 साल कम, मतलब एक्स में 2 माइनस कर दें तो 2 ईयर्स एगो। तो एक बार मैं इस यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर एक एक चीज़ लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको आगे से क्वेश्चन के अंदर ये सब लिखना नहीं पड़े और आपका दिमाग चले। 2 ईयर्स एगो फादर्स एज, यहाँ लिखते हैं 2 ईयर्स एगो फादर्स एज। फादर की एज कितनी होने वाली है? एक्स माइनस 2 ईयर्स, बोलो। एंड एज ऑफ सन, एज ऑफ सन इज गोना बी y माइनस 2 ईयर्स। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज से 2 साल पहले फादर जो था वो x माइनस 2 ईयर्स का था और जो बेटा था वो y माइनस 2 ईयर का था। नाउ क्वेश्चन बोलता है कि 2 ईयर्स एगो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन एक काम करते हैं, पहली इक्वेशन तो बना ही लेते हैं। 2 ईयर्स एगो अ फादर वॉज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो व्हाट इज द एज ऑफ फादर? x माइनस 2। कब? 2 साल पहले, तो x माइनस 2। तो एज ऑफ फादर इज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। मतलब आज से 2 साल पहले जो फादर की एज थी, मतलब जो कि x माइनस 2 था, वो 5 टाइम्स था किसके? बेटे की एज की है। बट बेटे की एज कब की? 2 साल पहले की ही बात कर रहा होगा, आज से तो कंपेयर करेगा नहीं। तो यस, हमारी इक्वेशन बनती है x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स y माइनस 2। स्टूडेंट्स, मेक श्योर दिस इक्वेशन गेट्स करेक्ट, बिकॉज कई स्टूडेंट यहाँ 5 इधर लगा देते हैं। तो आप इसको एक ही बार में समझ लें कि जो फादर की एज है वो 5 टाइम्स किसका है? सन की एज है, तो सन की एज से 5 टाइम्स होगा। यहाँ बड़ा कौन है? फादर है। कई बच्चे तो अलग ही प्लेनेट से आते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं और उसके बाद में पता चलता है कि फादर की एज जो है वो कम आ गई और सन की ज़्यादा आ गई। पता नहीं कौन सी बायोलॉजी लगाते हैं वो लोग, ओके। बट एट द लास्ट इन द आंसर बाद में वो बताते हैं कि एज ऑफ फादर इज 14 ईयर्स एंड एज ऑफ सन इज 42 ईयर्स। इस तरीके के स्टूडेंट्स देखे मैंने, ओके। ऑल्सो जैसे क्लास में मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ कई बार बच्चों से कि सपोज टुडेज एज ऑफ अ पर्सन इज x ईयर्स, व्हाट विल बी द एज ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, या मतलब 5 साल बाद एज क्या होगी? तो स्टूडेंट्स बताते हैं 5x। तो 5x का मतलब होता है 5 से x को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, ओके। तो इसका मतलब वो 5 साल में 5 गुने हो जाते हैं। तो आप अपनी अप्रोच को बिल्कुल क्लियर रखें यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो लेट अस सॉल्व दिस। x माइनस 2 इज इक्वल टू 5y माइनस 10 और x माइनस 5y एंड 10 माइनस 2 इज प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, ओके। सो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बना ली, ओके। नाउ अब बात कर रहे हैं 2 साल बाद की, 2 ईयर्स लेटर। नाउ 2 ईयर्स लेटर आ जाते हैं अपन 2 साल बाद। 2 साल बाद हिज एज विल बी, पहले तो अपन बात कर लेते हैं ना, एज अभी कितनी थी? अभी एज थी x ईयर्स, किसकी? फादर की। बेटे की y ईयर्स। तो 2 ईयर्स लेटर हमारे हिसाब से फादर की एज कितनी होनी चाहिए? एज ऑफ फादर कितनी होनी चाहिए? x प्लस 8 होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 8 सॉरी 2 ईयर्स लेटर ना, सॉरी x प्लस 2 होनी चाहिए, x प्लस 2। 2 ईयर्स लेटर हिज एज विल बी, ओके। तो 2 ईयर्स लेटर एज ऑफ फादर शुड बी x प्लस 2, x में ऐड करो प्लस 2, एंड एज ऑफ हिज सन इज गोना बी y प्लस 2। हमारे हिसाब से तो x प्लस 2 और y प्लस 2 इनकी एजेस होनी चाहिए थी, ठीक है। क्योंकि अभी अगर x ईयर्स के हैं तो 2 साल बाद ये x प्लस 2 ईयर्स का होंगे और ये y प्लस 2 ईयर्स के होंगे। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 ईयर्स लेटर हिज एज मीन्स एज ऑफ फादर विल बी 8 ईयर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं एज ऑफ फादर x प्लस 2 विल बी 8 ईयर्स मोर देन, 8 ईयर्स मोर देन मतलब 8 प्लस करो, 8 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। कब? 2 साल बाद। तो 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो सन की एज भी कब? 2 साल बाद। ये बन गई इक्वेशन। फादर्स एज 2 साल बाद, 8 प्लस करो प्लस 3 टाइम्स एज ऑफ सन। क्लियर? नाउ फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। x प्लस 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 3y प्लस 6। नाउ x माइनस 3y,
8 plus 6 is 14. Okay, 14 minus 2 minus 14 is minus 12. Okay, is equals to 0 and it is your equation number 2. अब दो इक्वेशन बनाने के बाद तो हम शेयर हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. अब तो हम सॉल्व कर देंगे इन दो इक्वेशंस को. फटाफट कंप्लीट करते हैं. लास्ट क्वेश्चन, सॉल्विंग 1 and 2. x minus 5y plus 18 is equals to 0. Sorry, plus 8 is equals to 0. X minus 5y plus 8 is equals to 0. And the next equation is x minus 3y minus 12 is equals to 0. Subtracting x get cancel out. 3y minus 5y, it will become minus 2y, and 12 plus 8 is plus 20 is equals to 0, or minus 2y is equals to minus 20 and y is equals to 10. Clear? Now putting in 1 x minus 5y, the value of y is 10, plus 8 is equals to 0, plus 8 is equal to 0, और x minus 50 plus 8 is equal to 0, और 8 minus 50 is minus 42. जब उधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो बन जाएगा प्लस 42. तो फादर की एज 42 ईयर्स आई है और सन की एज 10 ईयर्स आई है. अब देख लीजिए फादर सन से बड़ा ही आया है, ठीक है, हमने सही किया है. नाउ सो present age of father is 42 years and his son is 10 years. Also you can check the condition. Okay, क्या था क्वेश्चन? 2 साल पहले बोल रहा था कि फादर जो है वो 5 टाइम्स होना चाहिए बेटे का. चलो 2 साल कम पे आते हैं. 2 साल पहले फादर कितने साल का रहा होगा? 4 साल का, सॉरी 40 ईयर्स का. 2 साल पहले 42 में से 2 माइनस करा तो 40 ईयर्स का. और 2 साल पहले सन कितना रहा होगा? 8 ईयर्स का. तो 8 इंटू 5 40 होता है, मतलब फादर जो है वो सन की एज का 5 टाइम्स था. बिल्कुल सही था. 2 साल बाद क्या होगा? ये हो जाएगा 44 ईयर्स का, और 2 साल बाद ये हो जाएगा 12 ईयर्स का. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8 ईयर्स ज़्यादा होना चाहिए 3 टाइम्स के. ओके स्टूडेंट्स, तो 12 3 36 होता है, और 36 में अगर हम 8 ऐड करते हैं तो 44 आता ही है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यस बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, दैट मीन्स आवर आंसर आर करेक्ट. यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को. ओके, सॉल्व मोर क्वेश्चंस, एंजॉय, बाय बाय.